Hello student, welcome in our accountancy classes, and now we are going to start the first very important chapter, that is partnership accounts fundamentals. Okay, so in this chapter we will deal the entire aspect of partnership. As you know, one more thing before starting the things, I just want to show you some major facts of partnership accounts. Okay, this is the origin of partnership. As you can see here, the first partnership was in 1383, and it was the partnership of what? Parato and Florence, and it was the name Francisco di Marco Datni. That was the first partnership in the entire world. And in Europe, it is what? It is the basis of what? Industrial revolution in the world. That is commercial revolution, transport revolution. In same time, everything which was in revolutionary form due to partnership organization in entire Europe. As for our country concerned, it is Indian Partnership Act 1932, and it was passed on 8th April 1932 and came into force on 1st October 1932. Okay, and with this act, this form of organization separated from Indian Contract Act. Initially it was the part of Indian Contract Act, and after that it is separated in this act from the Indian Contract Act. Now move to next slide. This is definition. As you know, कि section 4 of Indian Partnership Act shows that partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. Means partnership is not a business organization. It is what? It is a relation among the persons who are ready to share the profit of that business which is run by all or one acting for all. Now, there are some features of this partnership organization. First, two or more person. As you know, there is minimum 2 members it is needed for partnership, and maximum it is 20. Initially it was 1932 Act, it was 30, but after the Indian Companies Act 2013 and it is rules of 2014, the maximum number of partnership it is 50. Okay, and second thing, there is agreement among the partners, means there should be written or oral agreement. And as you know, partnership deed is not compulsory for the partnership, so it may be written or oral, it's upon the partners. Second, existence of business and profit motive. There should be a legal business and there should be a profit motive. Means business, there will be business and for the profit purpose, and that business should be legal. Means if 2 or more person they are ready to do a business that is illegal in the country, so that contract is what? Voidable, and in that case you will definitely lose the definition of partnership, and that organization is not treated as partnership. Next, sharing of profit. There should be sharing of profit, means that there should be an agreed profit sharing ratio. Means जो partners होंगे वो एक certain ratio में अपना profit को आपस में distribute करेंगे. There should be business carried on by all or any of them acting for all. जो business है वो सब मिलके कर सकते हैं और उनके लिए कोई एक अकेले business को start कर सकता है. Now, last point is there is relationship of principal and agent between the firm and the partners. Means partners, when partners are principal, firm is agent, and when firm is principal, partners are agent. There should be mutual relation among the firm and the partners for principal and agentship. Clear? Now move to next slide. This is what partnership deed. Very important fact, और आपने 11th में इसको पढ़ा भी होगा कि जो partnership deed है, it is what? It is not compulsory. It depends upon the decision of partners कि if they want to get registered this deed
तो they can do, otherwise oral agreement is also known as deed. But as you know कि partnership is what? It is an agreement of utmost good faith. If there is no good faith, there will be no partnership. So for the maintaining the faith among the partners, there should be a proper deed, and that should be clear to each and every partner कि what the agreed agreement between the partners. Okay, means partners को ये clear होना चाहिए उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, और उसके लिए क्या करना होगा, उन्हें अपनी डीड में एक एक बात प्रॉपर उसको मेंशन करनी चाहिए. ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पहले डेफिनेशन देख लें. डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स which contains the terms of agreement. It is also called article of partnership. Means it is known as you know, company में भी article of association होता है. That is what? Internal agreement among the members of the company. So in this case we are containing all the rules and regulation or agreed terms of deed. So it is also known as article of partnership. तो हम लोग one by one contents यहाँ पे देखने जा रहे हैं. First content is name and addresses of the firm as well as partner. Means in agreement there should be the first part, name and addresses of the partner, and name and addresses of the partnership firm or its offices. Clear? Second, name and addresses of the partners, nature and place of the business, कि what type of business you are going to do, that should be mentioned in the deed. Means beyond that you can't do anything, because कि अगर आपने अगर एक प्रॉपर वर्क नहीं क्लियर किया, फंक्शन नहीं क्लियर किया, नेचर ऑफ द बिजनेस नहीं क्लियर किया, तो व्हाट विल हैपन, यू मे डू एनीथिंग एंड दैट मे बी वॉइड और वॉइडेबल और इलीगल. तो इन दैट केस, टू प्रिवेंट दैट दोज टाइप ऑफ केसेस, you have to what? Clearly mention the each and every part of that agreement. So nature and place of the business. Place, why place? Because with the help of place we can find the jurisdiction of the partnership. Means कि जो जस्टिस है, मतलब कोर्ट ऑफ जस्टिस किस jurisdiction में आएगा, हम वहां से इसको क्लियर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर डूइंग बिजनेस इन इलाहाबाद, तो आवर jurisdiction इज इलाहाबाद हाई कोर्ट और स्टेट ऑफ यूपी हाई कोर्ट, दैट इज इलाहाबाद हाई कोर्ट. नेक्स्ट, ड्यूरेशन इफ एनी पार्टनरशिप, अगर आप एक सर्टेन टाइम के लिए पार्टनरशिप करना चाहते हैं, मीन्स एक पर्टिकुलर काम 2 साल में 3 साल में आपको लगता है हो जाएगा, और 3 साल के लिए आपने एग्रीमेंट किया, तो दैट इज नोन एज एग्रीमेंट बाय टाइम. ठीक है, तो इफ देयर इज अ टाइम बेस्ड एग्रीमेंट, दैट शुड बी क्लियर इन पार्टनरशिप डीड. नेक्स्ट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, मीन्स what capital the partners are going to invest in partnership firm. Next, interest on capital, if they have invested capital, so if there is any interest on capital, you have to show the rate of interest on capital. Next, drawing and its interest on drawing, means कि what amount or what extent a partner can make the drawing from the firm, and if there is drawing, so if you want to charge interest on drawing, so mention the rate of interest on drawing on the deed. Clear? Next, profit sharing ratio. It is very important because it is the fact of the law कि there should be a agreed profit sharing ratio. तो profit sharing ratio भी हमें यहाँ पे mention करना होगा. Next, interest on loan. अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो फर्म उन्हें किस रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन देगी, वो भी यहाँ पर आपको मेंशन करना चाहिए. नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया. Partner's salary or commission, if you are going to provide partner's salary or any other type of commission, remuneration, bonus, so that should be mentioned in the deed. Next, method of valuation of goodwill and as all assets. देखिए one thing कि पार्टनरशिप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ऐसे केसेस में हमें क्या करना होगा, गुडविल कैसे वैल्यूएट होंगी, किन मेथड से वैल्यूएट होंगी, और उसके लिए अगर हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट कर रहे हैं तो वो कैसे होगा, दैट शुड बी ऑल्सो मेंशन इन द डीड. नेक्स्ट, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म एंड ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप. फर्स्ट थिंग कि अकाउंट किस डेट पे क्लोज होंगे. इफ कैलेंडर ईयर तो मेंटेन द कैलेंडर ईयर. इफ असेसमेंट ईयर देयर शुड बी डेट ऑफ असेसमेंट ईयर, इट शुड बी मेंशन. नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, इफ देयर इज ड्यूरेशन तो दैट शुड बी ऑल्सो मेंशन. राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, हाउ डिस्प्यूट्स विल बी सेटल्ड. तो पार्टनर्स के राइट और ड्यूटीज क्या हैं, और
उनका सेटलमेंट कैसे होगा, है ना। कि बहुत सारी प्रॉब्लम आती है पार्टनरशिप फॉर्म में कि लोग राइट्स की बात करते हैं लेकिन पार्टनर्स की कुछ लाइबिलिटीज भी होती है, हम लोग अभी उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो दैट शुड बी मेंशन। डिसीजन टेकन इफ सम पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट द पार्ट ऑफ सीबीएसई एंड आईसीएसई सिलेबस कि इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर हाउ द एसेट विल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ओके, इस केस में आपको एक केस है, आपको मैं अभी बता रहा हूं कि गार्नर वर्सेस मरे। डू यू नो गार्नर वर्सेस मरे? आप ये केस सर्च करेंगे और अगर आपको इस केस में कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज आप हमें हमारे इस वीडियो के साथ कमेंट बॉक्स में देंगे, तो हम लोग इसको डेफिनेटली एक्सप्लेन करेंगे। इफ यू इंटरेस्टेड, गार्नर वर्सेस मरे, इट इज द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर, सो प्लीज search it from the Google, and if you are not come to understand, so please send your comment to us. Next, rules to be followed in case of admission, settlement of accounts on retirement or death of the partner. देखिए बहुत सारी चीजें हैं कि एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ एवरीथिंग इज इन सिलेबस, तो दैट शुड बी क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सी मेथड्स और कौन कौन से रूल दे आर गोइंग टू अडॉप्ट in case of admission, retirement and death. Next, re-evaluation of assets and liability if it is to be done in the case of admission, retirement, death or change in PSR. तो किसी भी केस में अगर आपको re-evaluation करना है तो that should be clear and at least it should be clearly mentioned in the deed कि कब आप re-evaluation करना चाहते हैं. Next, method of recording the firm's account, which type of accounts you are going to adopt, that should be mentioned. And ऑडिटिंग, द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग, और बुक्स की ऑडिट होंगी, इसके लिए आपको मेंशन करना होगा. वन मोर थिंग कि एज यू नो कि पार्टनरशिप इज द एग्रीमेंट ऑफ व्हाट, गुड फेथ. तो गुड फेथ मेंटेन करने के लिए इट इज बेस्ट वे कि यू शुड गेट ऑडिटेड योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, तो जिससे पार्टनर्स में किसी भी प्रकार का कोई भी मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा. डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप कब से शुरू करना है, और settlement of dispute. It is very important line. You should know this part, settlement of dispute. It is very important because settlement of account, it is very important. Why? कि अगर कभी किसी पॉइंट पर कंसेंट नहीं हुआ 100% पार्टनर का, तो उस कंडीशन पे whose decision will be final, that should be clear. Clear? तो this is all what partnership deed elements, and if you are interested to one by one you can see again. And now I am going to move to next topic, that is benefits of deed. तो इतनी सारे पॉइंट्स आपके सामने अभी मैंने रखे और आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, जो डिस्प्यूट हो सकते हैं, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं. ठीक है, और मैंने जो कंटेंट्स आपको बताए उसके अलावा भी कुछ कंटेंट्स आपको लगता है कि एक पार्टनर को पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना चाहिए, तो वो आपको क्या करना होगा, उसको भी आपको नोट कराना चाहिए. मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ क्योंकि इट इज़ द पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, तो यू कैन नो, यू शुड नो द इट रेगुलेट द राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर. क्लियर है कि जब भी डीड आपके पास होगी क्या होगा, आपको रेगुलेशन करने में आसान होगा कि पार्टनर्स के राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, लाइबिलिटीज क्या हैं. दैट शुड बी क्लियर. सेकंड, इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स. एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट, इट अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग इन द फॉर्म. नेक्स्ट, एनी डिस्प्यूट अमंग, सी any dispute among the partners may be settled easily as the partnership deed may be referred to. अगर फॉर्म ने अपनी डीड में इस बात को मेंशन किया है तो ऐसी कंडीशन पे क्या होगा कि आपके कोई भी डिस्प्यूट नहीं होगा, और मैंने क्या कहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लायबिलिटी यू कैन क्लियर इन द फॉर्म. ओके, नो नेक्स्ट कि रूल्स एप्लीकेबल इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ डीड. एज यू नो कि डीड इज व्हाट, वॉलेंट्री, नॉट कंपल्सरी. तो इफ देयर इज नो डीड, तो व्हाट विल हैपन, व्हाट रूल्स should be followed by the firm and partners.
तो मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ लेना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि मैं और आप पार्टनर हैं और हम लोगों ने विदाउट डीड एक फर्म को बनाया और बिजनेस किया। तो सबसे आसान बात है कि हम दोनों चूंकि ओनर हैं बिजनेस के, तो हम लोगों को आपस में क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, सैलरी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वी आर गोइंग टू परफॉर्म द बिजनेस विद द ओनरशिप ऑफ वी टू। ठीक है, तो वी आर द ओनर, सो देयर विल बी नो सैलरी एंड प्रॉफिट कैसे बटेगा? बहुत आसान सी बात है, जब कोई रेशियो नहीं दिया हुआ तो आपस में इक्वल बटेगा। ठीक है, तो और अगर हमने अपनी खुद कैपिटल लगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलना चाहिए हमें। ठीक है, दूसरी चीज अगर हमने ड्रॉ किया तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लगना चाहिए। ठीक, तो ये क्या है? इट इज एज अ लेमन यू आर डूइंग, यू आर एक्सप्लेनिंग। नाउ सी व्हाट एक्ट इज टेलिंग अस। फर्स्ट, नो सैलरी। You can see no salary means no salary or any other remuneration to the partner in case of absence of deed. Second is no interest on capital, कि interest on capital भी partners को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि deed absent है। उसके बाद है equal PSR। C, equal PSR, there should be equal PSR among the partners. No interest on drawing. Okay, and last, in case of partners loan, 6% interest is liable the firm to pay to the partners. ठीक है, तो मैं फिर से आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि फर्स्ट है इक्वल पीएसआर, सेकंड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, थर्ड नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फोर्थ नो सैलरी और अदर कमीशन और बोनस एक्सेट्रा, एंड लास्ट इन केस ऑफ पार्टनर्स लोन, पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट रूल्स एप्लीकेबल इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ डीड। क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज राइट्स ऑफ द पार्टनर। राइट्स ऑफ द पार्टनर्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार बात कह रहा हूं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ईच एंड एवरी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो कीप कंसंट्रेटिंग। फर्स्ट, राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। आप जानते हो कि फर्म में पार्टनर जो होते हैं सब इक्वल राइट्स रखते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल लेमन कंडीशन पर, तो सबको क्या है कि राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, सब मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। सेकंड, राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। फर्म के बिजनेस से रिलेटेड किसी भी मैटर में उनसे कंसल्ट किया जाना चाहिए। थर्ड, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दे हैव राइट टू इंस्पेक्ट। नेक्स्ट, राइट टू शेयर द प्रॉफिट एंड बियर द लॉस। तो अगर उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है तो लॉस भी बियर करना होगा। क्यों? बिकॉज दे आर द पार्टनर इन द फर्म। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट एग्रीड रेशियो और 6% एनम। ठीक है, तो उन्हें क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना है। ठीक है, एग्रीड रेट पर, बट अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन उन्हें मिलेगा। राइट टू नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एज यू नो कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है, जो भी करंट पार्टनर्स होते हैं उनके 100% कंसेंट से होता है। अगर कंसेंट जो है नहीं मिला है या मेजॉरिटी कंसेंट की बात हो रही, तो ऐसे कंडीशन पे किसी भी पार्टनर का एडमिशन फॉर्म में नहीं हो सकता। ठीक है, तो एज यू नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि राइट टू नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नेक्स्ट, राइट टू एक्ट एज बेस्ट जजमेंट इन केस ऑफ इमरजेंसी। देखिए होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ों में हमें डीड गाइडलाइन देती है, लेकिन मान लीजिए एक ऐसी सीन है जहाँ पे इमरजेंसी है, मीन्स only one partner there is in the firm and rest of the out of the station। तो ऐसी कंडीशन पे जो पार्टनर उस जगह पे फर्म ऑफिस पर है, उसने जो भी बेस्ट जजमेंट लिया होगा, एवरीबडी शुड फॉलो दैट डिसीजन, बिकॉज दिस इज व्हाट बेस्ट जजमेंट इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, सो अवॉइड दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कि अगर कोई इमरजेंसी है तो जो पार्टनर अवेलेबल है उसका जजमेंट ही बेस्ट जजमेंट माना जाएगा और वी हैव टू फॉलो दैट। क्लियर? नाउ राइट आफ्टर दिस इज लाइबिलिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो भी सीबीएसई में केस स्टडीज आती हैं वहां पर ये दोनों लाइबिलिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। पहले रीड कर लीजिए, देन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट, if a partner carries on a business that is similar to that of the firm in competition with the firm and earn profit from it, the profit earned from such business shall be paid to the firm। देखिए ये केस बनता है कि मान लीजिए आप एक ऐसे फर्म में मेंबर हैं
जो आपकी करंट फर्म की कॉम्पिटिटिव है, सेम ट्रेड और बिजनेस कर रही है, और उस जगह से आपने कोई प्रॉफिट लिया है, तो क्या करना होगा, आपको इस फर्म को भी वो शेयर देना होगा। फॉर एग्जांपल, आप एबीसी फर्म में मेंबर हैं, ठीक है, उसकी कंपटीशन करती है XYZ फर्म, और XYZ जो फर्म है उससे आपको प्रॉफिट मिला है, तो जो प्रॉफिट आपको मिला है आपको एबीसी फर्म को देना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर एज पर एक्ट। ठीक है, अगर आप दोनों कॉम्पिटिटिव फर्म में एक साथ मेंबर हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्ट आपको प्रोहिबिट नहीं करता, लेकिन अगर एक कॉम्पिटिटिव फर्म से आपको प्रॉफिट मिला है तो दूसरी फर्म को आपको वो शेयर देना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, if a partner earn profit for himself by the use of firm's property or firm's business connections, the profit so earned shall be paid to the firm। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपने फर्म के जो बिजनेस कनेक्शन है और फर्म की बिजनेस प्रॉपर्टी उसको यूज करके पर्सनल प्रॉफिट गेन किया है, तो ऐसी कंडीशन पर आपको वो प्रॉफिट का शेयर आपको करंट फर्म को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने उनके बिजनेस एसेट और बिजनेस कनेक्शन को यूज किया है। फॉर एग्जांपल, फर्म के पास एक गोडाउन था, ठीक है, और चूंकि आप भी ओनर हैं एक एज ए पार्टनर, आपने उस गोडाउन जब खाली था उस दौरान किसी को रेंट पे दिया, तो जो रेंट आएगा वो आपने पर्सनल इनकम नहीं हो सकती, वो फर्म की इनकम होगी, और ऐसी कंडीशन पे वो इनकम फर्म को जाएगी और देन आफ्टर जो आपका शेयर बनता है वो आपको मिलेगा। तो लायबिलिटीज क्लियर कि पहली चीज क्या है कि आप अगर कॉम्पिटिटिव फर्म में पार्टनर हैं, हो सकते हैं नो डाउट, बट वहां से जो प्रॉफिट आपको मिलेगा आपको करंट फर्म को देना पड़ेगा। क्लियर? सेकंड, अगर फर्म की प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन को आपने यूज किया और सेल्फ प्रॉफिट जनरेट किया, तो ऐसी कंडीशन पर वो प्रॉफिट भी फर्म को जाएगा। क्लियर? नाउ वी आर मूव टू बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। देयर आर टू अकाउंट्स in this chapter we are going to deal, that is profit and loss appropriation and partners capital account. Clear? Now move to first account. This is profit and loss appropriation account. ठीक है, as you know it is what, it is the extension of, see, extension of profit and loss account, and net profit as per PL account is transferred to profit and loss एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो यू कैन सी कि जो नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट से आता है वो हम कहां भेजते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भेजते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज द एक्सटेंशन ऑफ पार्टनर्स पीएल अकाउंट, ओके, फर्म्स पीएल अकाउंट, सॉरी। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करते हैं, हम यहां पर जो भी पार्टनर्स को डीड में कहा गया है देने को या पार्टनर से रिसीव करने को, हम एप्रोप्रिएशन में उसको डील करते हैं। क्लियर है? दिस इज व्हाट द first account of the partners related matter. So you can see one by one the features. First, it is the extension of the PL account, जो आपने PL account फॉर्म के लिए बनाया उसका एक्सटेंशन है, because in this account we are deal only the partners matter. ठीक है? Second, it is prepared only by the firm. ये भी अकाउंट क्या है, ऐसा नहीं कि पार्टनर से रिलेटेड मैटर तो पार्टनर बनेंगे, नो, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्म. थर्ड, it shows the appropriation of the net profit and loss for the accounting period. जो भी appropriation partner से related है हम इस अकाउंट में शो करते हैं, एक फाइनेंशियल अकाउंट से रिलेटेड, अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड। ठीक है, एंड लास्ट द थिंग्स, एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर पास गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जो भी पार्टनर से रिलेटेड मैटर है हम वहां पर क्या करेंगे, हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको मेंशन करेंगे। ठीक है, और अब हम लोग वन बाई वन उन एंट्रीज को देखने जा रहे हैं जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम शो करते हैं। सी, देयर इज सम जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग व्हाट, ट्रांसफर ऑफ डिफरेंट आइटम्स टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यू कैन सी दिस, फर्स्ट, फॉर ट्रांसफर ऑफ balance of PL account, for transfer of PL account balance, see here this first profit and loss account debit to profit and loss appropriation account, means जो भी net profit है
उसे हम क्या करेंगे, उसे पीएल अप्रोप्रिएशन में भेजेंगे, तो उसको भेजने की सबसे पहली एंट्री होगी। उसके बाद है सेकेंड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट एंट्री, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जो भी मेंशन होगा उस समय, और उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कहां भेजेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज सैलरी एंड कमीशन पेबल टू पार्टनर, तो अगेन ये भी क्या है, एक्सपेंस है फॉर्म के लिए, लेकिन पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो पार्टनर सैलरी डेबिट टू व्हाट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसको भी हमें क्या करना होगा, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, ठीक है। ये ट्रांसफर हो गया, ठीक है। नो फोर्थ एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कुछ पैसे हमें रिजर्व में भी ट्रांसफर करने होते हैं, ठीक है। तो उसको रिजर्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू रिजर्व, हमें वहां रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा, अप्रोप्रिएशन से जाएगा। नेक्स्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो एज यू नो दिस इज द expense for the partners but income for the firm, so it is charging, तो partners capital और current account debit to interest on drawing, ठीक है। and again it is transferred to appropriation account credit side, तो what interest on drawing debit to PL's appropriation account. now last for transfer of profit, तो जो भी प्रॉफिट है अगर क्रेडिट बैलेंस है तो अप्रोप्रिएशन का उसे हमें क्या करना होगा, हमें कैपिटल अकाउंट में उसे ट्रांसफर करना होगा, और डेबिट बैलेंस होगा तो भी यहाँ से बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, क्लियर है। अगर हम इसको फॉर्मेट में देखें तो फॉर्मेट कुछ इस तरह आएगा, बहुत ध्यान से देखें कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर ड्यूरिंग व्हाट, अप्रैल टू मार्च, एंड डेबिट साइड में देखिए फर्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो भी पार्टनर होंगे हमको उनके पार्टनर के नेम के साथ देना होगा। फिर पार्टनर सैलरी, अगर वहां पे भी पार्टनर है तो हमें पार्टनर के साथ देना होगा, ट्रांसफर टू रिजर्व करेंगे, और क्रेडिट साइड में आपको ये देखिए नेट प्रॉफिट आया है, ठीक है, तो पीएल अकाउंट से वो यहाँ पे आएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी पार्टनर की है वो इकट्ठा आपको यहाँ पे शो करना है। फिर जो बैलेंस आएगा उससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, क्लियर है। अगर ये बैलेंस इधर आएगा तो आप यहां पर बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां पर शो करके आप यहां पे दिखा सकते हैं। दिस इज व्हाट वेरी फर्स्ट अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट, बोर्ड एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 6 मार्क्स 4 मार्क्स की कैटेगरी में ये क्वेश्चन आते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, सो इट इज डेबिटेड, पार्टनर सैलरी इट इज ऑल्सो एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, सो इट इज डेबिटेड, transfer to reserve, this is the future preparation for the partners by the partners, so it is debited, and interest on drawing is the income for the firm, so it is credited, and the balance it is transferred to partners capital account, clear. Now partners capital account, there are two types of account. Partners capital account is having two types. First, when partners capital is fixed, and second when partners capital is fluctuating. When partners capital is fixed, see here, so there will be two accounts, partners capital account and partners current account, clear. In partners when partners capital account is fixed, ठीक है, तो इसमें पहला अकाउंट क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे ध्यान रखना है कि फर्म की जो ओपनिंग कैपिटल है दिस इज, ठीक है, वही ऑलवेज रहेगी क्रेडिट में, बट अगर कोई परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल है तो वो डेबिट होगा, और अगर कोई नई कैपिटल फॉर्म में आ रही है तो वो क्रेडिट होगा, ठीक है। हमेशा ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में 2 आइटम्स बताइए और क्रेडिट में 2 आइटम्स होती है। होता क्या है कि जो एक ओपनिंग होता है यही क्लोजिंग होता है, तो जनरली 2 आइटम्स फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो कीप इन माइंड कि देयर इज 2 थिंग इज क्रेडिटेड, दैट इज ओपनिंग कैपिटल, दिस इज नोन एज
opening capital and this is additional capital. There are two items, and in case of debit it is what? Permanent withdrawal, and ये जो closing है ये closing capital. ये दो चीजें आपको यहां पे डेबिट में शो करनी होगी. ठीक है. Second account is partners current account. It is account which is related to the current year of the firm. ठीक है. तो यहां पे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे. वो बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है. बहुत ध्यान समझेंगे. ये बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है. हमने इसलिए आपको क्रेडिट भी लिया क्योंकि जनरल परसेप्शन प्रॉफिट के साथ हमने लिया. उसके बाद देखिए आप पीएल एप्रोप्रिएशन में जो भी चीजें आपने डेबिट दिखाई थी, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिम्यूनरेशन, बोनस, ठीक है, एंड व्हाट, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ठीक है, और यहां पे क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, ये यहां पे शो होंगे. और आखिरी में आपको बैलेंस निकालना है. ये बैलेंस जैसे ओपनिंग बैलेंस डेबिट और क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, तो वैसे ही क्लोजिंग बैलेंस भी डेबिट हो सकता है या क्रेडिट हो सकता है. ठीक है. यहां पे तीन चीजें बहुत ध्यान से समझ लीजिए. सबसे पहली बात कि डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट शोन इज एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. जो भी डेबिट बैलेंस आएगा मींस अगर डेबिट साइड बड़ा है कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट का, तो इट शुड बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. Credit balance of the current account is shown as the liability of the balance sheet, and balance of fixed capital account, that is capital account, are always shown in liability side of the balance sheet. See, debit balance of current account shown in asset side, credit balance of current account shown in liability side, okay, and balance of fixed capital account, ठीक है, इट इज ऑलवेज शोन इन लाइबिलिटी साइड द बैलेंस शीट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दीज थ्री थिंग्स कि जब भी करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा उसे एसेट में ले जाएंगे. करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है उसे लाइबिलिटीज में ले जाना है, और बैलेंस शीट में आपको फिक्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर करना है. ठीक है. नाउ मूव टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज फ्लक्चुएटिंग, in that case you have to include both the accounts in the same manner. This is opening capital, see additional capital, interest on capital, salary and remuneration, commission and bonus, again cash यानी permanent withdrawal of the capital, drawing, interest on drawing, अगर loss है तो loss, और PL appropriation अगर profit है तो वो यहाँ पे आएगा. ठीक. आफ्टर दैट यू कैन टेक द बैलेंस. ठीक है. जो भी बैलेंस इधर होगा आपको वो दिखाना है. जनरली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, सिर्फ क्रेडिट बैलेंस आता है. ठीक है. आगे बढ़े. नाउ टुडे आई एम स्टार्टिंग विथ व्हाट, ओनली वन टॉपिक, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है. थ्योरी एस्पेक्ट है. देन आफ्टर वी विल मूव टू next topic in next lecture. This is the last topic of today's lecture, that is interest on capital. Interest on partners capital will allowed only when one thing, it is specially mentioned in the partnership deed. Clear? कि जब डीड अगर आपको उसकी परमिशन दे रहा है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा, और अगर डीड में नहीं लिखा है तो आप जानते ही हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल can be treated either an appropriation of profit or charge against the profit. मैं आपको आज ये दोनों बातें एकदम क्लियर करना चाहता हूं. अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, तो ऐसी कंडीशन पे आपको क्या करना है, क्या करना है, आपको ये देना है प्रॉफिट होने पर. ठीक है. क्या लिखा है, एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट मींस व्हाट, व्हेन देयर विल बी प्रॉफिट यू हैव टू पे, एंड व्हेन इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो क्या करना होगा, चाहे प्रॉफिट हो और ना हो आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा. ठीक है. अगर एप्रोप्रिएशन दिया है तो उस कंडीशन पे क्या करना होगा, प्रॉफिट होने पर देना है. लेकिन अगर चार्ज है तो इट इज पेड आइदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस. यू हैव टू पे दिस एंड यू शुड नो दीज टू थिंग्स वेरी क्लियरली कि एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट. और ये बेटा इसी चीज के लिए नहीं,
हर वो आइटम जहां पर ये लिखा होगा लाइक रेंट टू द पार्टनर, ठीक है, सैलरी टू द पार्टनर, अगर वहां पर ही लिखा है कि इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, तो यू हैव टू पे व्हेन देयर इज प्रॉफिट. बट अगर वहां पे लिखा है इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, देन it has to be paid either there is profit or loss. तो इसकी आगे डिटेल हम लोग देख रहे हैं कि when there is appropriation of the profit, ठीक है. तो आपको तीन चीजें यहां पे देखनी है, मैंने तीन कैटेगरी आपके सामने रखी है. सबसे पहले when there is loss, अगर फर्म को लॉस हुआ है और एप्रोप्रिएशन है तो उस कंडीशन पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पेड होगी. सी नॉट अलाउड, ठीक है. And second thing, when sufficient amount of the profit means you have such amount कि you have to pay that interest on capital, so you have to fully allow and you have to pay, ठीक है. It is allowed and it is paid by the firm. When not sufficient amount of the profit, in that case allowed up to the available profit in ratio of interest on capital. Means आपको पेमेंट करना है, लेकिन जितना प्रॉफिट है सिर्फ उतना ही पेमेंट करना है. और पेमेंट का तरीका क्या होगा? यू हैव टू यूज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, नॉट कैपिटल रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो. अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, दोनों तो एक ही चीज लगभग हो जाएगी एक सर्टेन टाइम पर. बट मैं आपको हमेशा कह रहा हूं कि जल्दीबाजी नहीं, आपको बहुत ध्यान समझना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है हर पार्टनर के लिए अलग हो सकता है. तो इसलिए बार बार फॉर्म में कहा जाता है कि अगर आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो यू हैव टू यूज interest on capital ratio, not in capital ratio. This is when the charge against the profit, अगर charge against the profit है तो उस कंडीशन पे क्या करना होगा? Interest on capital is always allowed in full irrespective of the amount of the profit or loss. आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट करना होगा. और अगर फर्म में ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है, ध्यान रखेंगे कि जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है. तो उसके लिए आपको ये कैलकुलेट करना होगा. सबसे पहले आपको लेना है कैपिटल एट द एंड, जो बैलेंस शीट में आपको गिवन होंगी. फिर ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस अगर है तो उसको आपको ऐड करना होगा. फिर ऐड करने पे जो भी वैल्यू आपको रिसीव होगी, आपको एडिशनल कैपिटल उसमें इंट्रोड्यूस जो है लेस करनी है, प्रॉफिट लेस करना है, और कोई सैलरी और अदर कमीशन पार्टनर को दिया वो आपको लेस करना है. आफ्टर दैट यू विल गेट द ओपनिंग कैपिटल एंड ऑन दिस ओपनिंग कैपिटल अकाउंट यू हैव टू चार्ज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. क्लियर? दिस इज फॉर ऑल टुडे एंड थैंक यू and meet again. We will meet again next lecture with next topics and the numerical problem also. Thank you. सर नहीं क्या?